Yeah, now it is audible clearly, all of you. Videos on. Karwale, audible. Chalo, all videos on. सर थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर सो. हाँ. Okay. Chalo. Take sum number 22, very important sum. Let's begin. These are all important entries of purchase and sales. Okay, it's like a revision of purchase and sales entries with TD, CD, everything. 22. Partly cash, partly credit. Placed an order of goods of 5,000 to Vishal at 10% TD, 5% CD terms. Payment within 7 days. Payment within 7 days. What does it mean? Is it on? Will you pass any entry first of all for this? No entry. Why? Placing an order is not a transaction, right? Placing an order is not a transaction. Write down, note लिख दो. Placing an order is not a transaction and no entry. अभी इसमें कोई डेट नहीं है, तो you start with serial number, okay? No date is given. So serial number, particulars, LF, debit and credit. First one is a no entry, as placing an order is not a transaction. ठीक है? Then second one, he executed the order. Who executed the order? Vishal. So tell me, what do you mean by that? Payment within 7 days, CD terms. If within 7 days we make the payment, then we will get some cash discount. Otherwise, there will not be any cash discount. So यहाँ पर is the transaction happening on credit or for cash? Credit पर हो रहा है क्योंकि पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया, खाली इतना दिया है he executed the order. He executed मतलब उसने goods भेजा, बराबर है? क्या हमने पैसा दिया है? नहीं, पैसा नहीं दिया है, खाली goods आया है. अच्छा, कौन सा डिस्काउंट लेना है? Only TD. What is your TD? 10%. That's 500. Net amount 4,005. क्या होगी एंट्री? Purchase account debit to Vishal account. How much? 4,005. 4,005. Purchase to Vishal will be 4,500. This is goods purchased on credit. No need to write narration. Narration you can skip. Goods purchased on credit from Vishal. अभी कितने दिन के अंदर we need to make the payment for getting the CD? 7 days. मतलब 7 days counting from first or second? Second. First को तो क्या हुआ था? Order place हुआ.
एग्जीक्यूशन कब हुआ? सपोज उसने 7 तारीख को एग्जीक्यूट किया होता तो 14 तारीख तक, बोलने का मतलब समझा? एग्जीक्यूशन कैन टेक टाइम, राइट? So always you have to calculate that CD का date from which date? Date of execution. तो 2 तारीख से 9 तारीख तक, कितने तारीख तक? 9th तक। 9th तक अगर हमने पैसा दे दिया, 9th तक अगर हमने पैसा दे दिया तो will we get some CD? Yes, definitely will get CD. अगर 9th तक पैसा नहीं दिया तो फिर कोई CD मिलने वाला। Is this clear? करो। So he executed the order, उसका एंट्री आ गया आपका purchase to विशाल। Next one, third one, we paid half the cash to विशाल। मुझे बताओ विशाल को कितना कैश देना है आपको? 4,500 की 5,000? This was imaginary price before TD, right? TD दे के नेट प्राइस कितना हो गया? 4,500। So 4,500 का आधा कितना होता है? 2250. So half of 4,500, which is equal to 2250. So how much cash are we paying to Vishal? Only 2250, half of 4,500. Will we get any CD in this? CD मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा पक्का? क्यों? Within 7 days. Within 7 days we are paying. Absolutely right. So less CD कितना? 5%, that is 120, 112.5, right? So 113 you get, 2137. The net amount, final amount is 2137. 2250 by 5%. Will you take it on 2250 or 4,500? Why 2250? हाफ। घर वालों को समझाइए, पहले हमने परचेज किया 4,500 का, उसके बाद आधा ही पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? हाफ। हाफ मतलब कितना? 4,500 का हाफ कितना होता है? 2250। 2250 पे कितना सीडी लेना है? 5%। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट कितना लेना है? 5%, बिकॉज विद इन 7 डेज। समझा? तो 2137 हम पे कर रहे हैं एक्चुअली। कैन यू टेल मी धर्मेल जोशी, व्हाट शुड बी द एंट्री? विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट receipt. All of you got this? Vishal account debit to cash account to discount received account. How much in Vishal? 2250. 2250. How much in cash? 213. 2137, and discount is 113. Vishal's account debit to cash to discount received. क्योंकि आधा पैसा दिया, विशाल इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। या फिर विशाल अपना कौन था मॉडर्न कंसेप्ट में? क्रेडिट। विशाल वाज अ क्रेडिटर। लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा। जब उसको पे किया तब लायबिलिटी घटा, लायबिलिटी सेटल्ड, सो डेबिट। कैश घटा तो क्रेडिट, एंड डिस्काउंट इज योर इनकम, सो क्रेडिट। पूछा? आई टेढ़ो पेज नंबर 22, सब नंबर 20। चलो बढ़े आगे। घर वालों को क्लियर ये वाला? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम वसंत फॉर गुड्स ऑफ 10,000, 10% ED, 2% CD, पेमेंट विद इन 5 days। रिसीव्ड एन ऑर्डर, क्या होगा? कुछ ट्रांजैक्शन? नो एंट्री फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर, राइट? नो एंट्री फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर। No entry for receiving an order, not a transaction. No entry for receiving an order since it is not a transaction. Why have they given that 5-day thing? 5 days के अंदर अगर अपने को पैसा मिला तो we will allow CD। जैसे विशाल के केस में 7 days के अंदर अगर हम पैसा देते तो CD मिलता, राइट? वसंत के केस में अगर हमको 5 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा तो हम CD अलाउ करेंगे, अदरवाइज
नो सीडी, करेक्ट। सो यहाँ पर तो नो एंट्री है, फोर्थ को तो नो एंट्री है क्योंकि ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर रिसीव किया है, ऑर्डर रिसीव किया। फिफ्थ को वी एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर, 5 तारीख को हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तो हैव वी सोल्ड और हैव वी परचेज? सोल्ड कि परचेज? सोल्ड, पक्का। वी एग्जीक्यूटेड, हमें ऑर्डर मिला था, हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमने गुड्स बेचा। हाउ आर वी सेलिंग, कैश और क्रेडिट? व्हाई क्रेडिट? पार्टीज नेम इज गिवन, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट कैश, राइट। और कैश की कंडीशन भी दी गई है, कितने दिन के अंदर पैसा रिसीव करना है अपने को? 5 डेज के अंदर पैसा रिसीव करना है। तो 5 डेज के अंदर वसंत ने पैसा दिया तो हम लोग सीडी अलाउ करेंगे, अदरवाइज सीडी अलाउ नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पर क्या एंट्री होनी चाहिए तनय? पहले तो कौन सा डिस्काउंट लोगे आप वसंत के केस में? ओनली टीडी या टीडी सीडी बोथ? ओनली टीडी। सो 10,000 पे लेस टीडी 10%, that comes to 1,000. Net amount 9,000. Tell me the entry. Very good. Vasant account debit to sales account. Vasant account debit to sales account. How much? 9,000. Vasant account debit to sales account. That should be 9,000. Vasant to sales. That will be 9,000. Who is Vasant for us? Debtor. Asset. कितना पैसा लेना है? 9,000 लेना है. After TD amount is 9,000. So how much are we supposed to get? 9,000 from Vasant. Got it? As of now. And if he pays this 9,000 within 5 days, only then we will allow him some CD. Otherwise, no CD. Otherwise, no CD. Is this clear? विशाल को अभी भी कितना पैसा देना है? विशाल 2250, एग्जैक्टली 2250, 4,500 का आधा दे दिया है, आधा देना एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेक्स्ट वन। एक्चुअली सीरियल नंबर नहीं है, डेट्स ही है, ऊपर डेट्स कर दो, मंथ नहीं दिया है, खाली मंथ्स और ईयर नहीं दिया है, डेट ही कर, दीज आर डेट्स ओनली, डेट्स कर देना ऊपर। नाउ received a check from Vasant for 1/3 of the amount. Received a check for 1/3 of the amount from Vasant. कितना लेना है वसंत से? 9,000 लेना है। So 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000. बराबर है? Will you calculate any CD on this? लेना है कि नहीं लेना है, पहले वो डिसाइड करो। क्यों लेना है? 5 डेज के अंदर आ गया तो 3,000 का 2% कितना होता है? 60 रुपीज। तो नेट अमाउंट 2940। जैसे विशाल के केस में हमने सीडी कैलकुलेट की, वैसे वसंत के केस में भी वी हैव टू कैलकुलेट सीडी। इज दिस क्लियर? दोनों के केस में कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा बिकॉज इट इज बिफोर टाइम, बिकॉज इट इज बिफोर टाइम, बिफोर द गिवन टाइम। व्हाट इफ 5 दिन के बाद पैसा दिया होता तो कोई सीडी अलाउ नहीं करते, कोई कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं करते। अब मुझे एंट्री फ्रेम करके बताओ विहान, क्या एंट्री बनेगी? एकदम करेक्ट। वाई बैंक, वाई नॉट कैश? चेक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट, कम पैसा आया, तो वसंत की सेल्स, वसंत की सेल्स बनने ओनली वसंत, व्हाई नॉट सेल्स? सेल्स तो पहले हो चुका है, अभी कौन सा पैसा दे रहा है अपने को? डेटर पैसा, बराबर। सेल तो पहले क्रेडिट हो चुका है 9,000, अभी वापस सेल्स लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट सेल में अभी डेटर। कैश सेल होता तो ताबड़तोड़ बैंक टू सेल। बैंक क्यों डेबिट किया? चेक,
तो व्हाट इज बैंक? एसेट. एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा. एसेट बढ़ा तो डेबिट. डिस्काउंट एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड वसंत was वसंत डेटर और क्रेडिटर? वसंत कौन था हमारा? डेटर था. डेटर से पैसा लेना बढ़ा कि घटा? घटा. डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट. डेटर कम हो गया तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? घर वालों को समझ रहा है? चारवी, ध्रुव, कौमिक, मेघल, क्रिश. चलो 7th one, sold goods of 1000 at 10% TD and 2% CD. Heer Patel. Is it on cash or credit? First of all, cash. Or if you recognize this, it's on cash. Why? पार्टी का नाम दिया ही नहीं है. पहला ही कंडीशन डिससैटिस्फाइड. पहला ही कंडीशन गायब हो गया तो फिर इट इज ऑन कैश. दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं. सो कौन सा डिस्काउंट लेना है? बोथ. पहले 1000 पे यू टेक टीडी एट द रेट ऑफ 10%. कितना होता है? 100. नेट करो 900. उस पे क्या करना है? सीडी भी लेना है 2%. कितना होता है? 118 रुपीज. हाँ, तो ये होता है 882. Can you tell the entry here, Patel? Do discount allowed? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एकदम करेक्ट. कैश अकाउंट में कितना? डिस्काउंट टू सेल्स 900. Okay, these are goods sold for cash at cash discount. ताबड़तोड़ कैश आ गया. कैश बढ़ा तो डेबिट और सेल्स बढ़ा तो क्रेडिट. कैश इज व्हाट? एसेट. कैश बढ़ा तो डेबिट और सेल्स इज व्हाट? इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एकदम करेक्ट. एकदम करेक्ट. Eighth one, purchase goods of 3000 at 5% CD and 10% TD from Vishal for cash. Yes, Ashna. Cash or credit? पहले तो cash or credit? Cash. Which discounts? Both TD as well as CD. First step 10%. That is how much? 300. Net amount 2700. Will you take CD? Yes. How much? 5%. 5% is CD. बराबर है? कितना होता है ये? 135. 2565. Entry? एकदम करेक्ट. Purchase account debit to cash to discount receive. Purchase to cash to discount receive. Tell me, purchase में how much? 2700. To cash and discount received is 135. Purchase to cash to discount received. This was also on cash basis because गड़बड़ है. 882 वाले में डिस्काउंट अलाउड भी है और सेल्स में 900. चेक करो बराबर से, घाई मत करो. इसमें परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 2700, 2565 एंड 135. ठीक है? 1 मिनट. यहाँ तक क्लियर घर वाले? ओके, बढ़े आगे. नेक्स्ट वन, रिटर्न गुड्स ऑफ 500 to Vishal. Return goods of 500 to Vishal. Tell me, Meg, कौन सा रिटर्न है ये? वेरी गुड. सो क्या एंट्री बनेगी?
Very good. Ekdam correct. Vishal account debit to purchase returns account. Why Vishal debit? Sorry, Vishal. Who was Vishal? Creditor. बड़ा की घटा? घटा तो डेबिट. लाइबिलिटी घटी तो डेबिट. बराबर है? And why purchase returns credit? What is purchase returns? Income. It's an income. So income बढ़ी तो credit. एक रीजन भी पता होना चाहिए. विशाल टू परचेज रिटर्न कितना? 500. विशाल टू परचेज रिटर्न दैट्स 500. Being goods return to विशाल. बराबर है? विशाल टू परचेज रिटर्न 500. लाइबिलिटी घटी तो डेबिट. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. ठीक है? Then return goods of 300 gross to विशाल. मिलोनी पहले तो ग्रॉस का क्या करना है? टीडी माइनस करना है. क्यों माइनस करना है? टीडी ग्रॉस दिया है. किसका टीडी लेना है? पहले तो इतने सारे टीडी थे ऊपर. लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ विशाल. लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ऑफ विशाल कितना था? ये देखो ये रहा. हाउ मच वाज टीडी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन में? 10%. तो लेस टीडी 10% कितना होता है? 30 रुपीज. 27. एंट्री मिलोनी सेम एंट्री. विशाल टू परचेज रिटर्न. विशाल टू परचेज रिटर्न. वाई विशाल डेबिट? क्रेडिटर घटा मतलब क्या घटा? लायबिलिटी. और परचेज रिटर्न वाई इट इज क्रेडिटेड? इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. याद आ रहा है? ये सब किया था हमने. इट्स लाइक अ रिविजन ऑफ टीडी सीडी रिटर्न्स. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. मुझे बताओ इन दिस सिनारियो हियर विशाल को यहां पर why we did not subtract TD and here why did we subtract TD? इधर कोई ग्रॉस दिया था? इधर ग्रॉस दिया था. यस. तो ग्रॉस नहीं दिया तो कुछ करने की जरूरत है? ग्रॉस दिया है तो खाली क्या करना है? टीडी माइनस करना है. ग्रॉस दिया है तो टीडी. क्यों ऐसा? डू यू रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन ग्रॉस प्राइस? नेवर. ओके. टीडी है तो टीडी माइनस करके. तुमको बताया था ना दुकान में जाके 50 रुपए का बुक तुमने 40 में खरीदा तो रिटर्न करने जाओगे डिफेक्टिव तो कितने में रिटर्न करोगे? 40 रुपए. 50 रुपए में थोड़ी करोगे. विल डू इट फॉर 40 रुपीज. इज दिस क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, रिटर्न्स आर ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस. नथिंग इज स्पेसिफाइड. क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या? पार्टी का नाम होगा और होगा. अभी कैश ताबड़तोड़ मिलने वाला नहीं, ना ही हम देने वाले. बराबर है? तो हमने विशाल को रिटर्न किया, वो अपने को कैश नहीं देगा. वो अपने को रिप्लेस करके नया गुड्स देगा. इज दिस क्लियर? सर आपने पूरा पार्टी का नाम दिया रहेगा. इधर 13 कॉलम में पार्टी का नाम रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300 नेक्स्ट. वो अजय ही है. अजय रिटर्न गुड्स. वो करेक्शन करवाता हूँ. अजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट. हाँ, सेल्स रिटर्न टू अजय. एंट्री सेल्स रिटर्न टू अजय. बता दो, मैं करेक्शन करवाता हूँ. तो रिटर्न्स में ऑलवेज इट विल बी ऑन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट बेसिस. बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कैश मिलेगा. ओके. बहुत रेयरली. अगर कैश मिला तो इट विल बी कैश टू परचेज या सेल्स रिटर्न टू कैश. कैश मिला या दिया तो 99% द रिटर्न्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस. ओके. 11th one, who will answer this? Laukik. Purchase goods of 5,000 at 10% TD from Ajay and 2% CD terms, paid 1/3 of the amount by check. Is it on cash, credit or partly cash, partly credit? तो पहले शुरुआत कहाँ से करोगे? 5,000 पे 10% TD, that's 4,500. 1/3 by check and 2/3 by credit. Okay, so 1/3 is check. 300 Yes, and 3,000 rupees. very good. They are given that 2% CD is available. एकदम correct. 30 rupees is to be
subtracted from 300. 2%, right? Yeah. That is 30 rupees. Ekdam correct. And that is the amount is 1470. 1470. So now Entry. entry is purchase account to bank account to discount allowed account to Purchase account debit to bank account. The discount receipt. Discount received आएगा to Budget account. Be alert. One silly error and gone. So purchase to bank to discount received. Why discount received? That's your gain. And why purchase debit? Expense बढ़ा तो debit. Why bank credit? Asset घटा because you are giving check. Discount. Income बढ़ी तो credit. अजय liability. Liability बढ़ी तो credit. बराबर है? ये बताओ purchase में कितना आएगा? 4,500. To bank how much? 1470. Discount received 30 and Ajay 3,000. Okay. Ajay में आएगा 3,000. एकदम correct है. Absolutely right. सुना था संडे को भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो ना. कौन बोला संडे को बिजनेस को कंपलसरीली हॉलीडे देने का? अपना क्लास भी संडे को चालू ही रहता है ना. संडे को भी ट्रांजैक्शन होते ही है ना. संडे खाली गवर्नमेंट बिजनेस. अपना बिजनेस संडे को भी ट्रांजैक्शन कर सकता है प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट 12th one, sold goods of 10,000 to Vijay at 10% TD, 2% CD, received half the amount. मुझे बताओ ध्रुव भानुशाली, is it on cash or credit or partly cash, partly credit? हाँ सर, क्रेडिट पर 12th one sir. પાર્ટલી ક્રેશ પાર્ટલી ક્રેડિટ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું કરવાનું? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટીડી માઈનસ કરવાનું. 10,000 पे 10% TD, right? हाँ. That's how much? 1,000. Net amount 9,000. 9,000. इसका क्या करेंगे हम? बे पार्ट, right? हाँ. Half cash, हाफ क्रेडिट. half credit. तो कितना होता है? 4,500 cash, 4,500 credit. Then what? कैश पे सीडी लेने का. कैश पे सीडी लेना है. कितना है? 2%. कितना होता है वो? 90 रुपीज. Net 441. 441. Tell me the entry, Dhruv. Yes sir, it will be cash account. Correct. Cash account debit. Discount allowed account. Very good. Discount allowed account debit. 2. That's it. No. Credit भी है. हाँ, क्रेडिट भी है. विशाल विजय account. Vijay account debit. To what? विजय account debit to sales account. Sales account. बराबर है. कैश में कितना आएगा? कैश is increasing by how much? 4410. Correct. Discount 90. Vijay 4500. total 9,000. 9,000. Okay, there is no GST involved in this. Only partly cash, partly credit. Okay. Yeah. समझा ये वाला? Cash discount allowed Vijay to sales. Okay. Cash बढ़ा, discount expense बढ़ा, Vijay debtor asset बढ़ा और sales income credit. Okay. Income बढ़ी तो credit. Then next one. उधर 13th वाले में करेक्शन है. विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट. सॉरी, विजय रिटर्न 13th वाला. विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट. विजय 13th.
विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 net. 13th one is Vijay return goods of 300 net. Yashvi Bhanushali, Vijay return goods of 300 net. Tell me the entry. Yes, sir. So sales return debit to Yes. Vijay account. Ekdam correct. Sales return debit to Vijay. Why sales return debit? Sir, because sales return is an expense. Sales return is an expense. Okay, so expense बढ़ा तो debit. और why Vijay credit? Sir, because Vijay is our debtor. So debtor बढ़ा कि कम हुआ? Debtor कम हुआ. कम हो. रिटर्न कर देगा उतना पैसा कम देगा तो डेटर कम हो गया. बराबर है. डेटर कम तो एसेट कम, राइट. अगर उसने रिटर्न कर दिया तो उतना पैसा आपको कम मिलेगा. कम मिलेगा तो डेटर कम, एसेट कम. सो क्रेडिट. एकदम करेक्ट. सेल्स रिटर्न टू विजय. यस. नेक्स्ट वन वैभवी. विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 400 ग्रॉस. હવે શું કરવાનું? First, you will have to minus TD 10%. Why? Because it is gross. Gross. कितना TD? How much TD you will subtract? TD 10%. Why 10%? Which 10% you took? 1 in the 12th sum. 1 in the 12th one, right? विजय का सेल्स रिटर्न है तो विजय का टीडी नियरेस्ट वाला. विशाल का है तो विशाल का टीडी नियरेस्ट वाला. अजय का है तो अजय का टीडी नियरेस्ट वाला. जो भाव पे सेल्स हुआ है वही भाव पे सेल्स रिटर्न नियरेस्ट वन. जो भाव पे परचेज किया है वही भाव पे परचेज रिटर्न नियरेस्ट वन. इज दिस क्लियर? सो 10% टीडी, that comes to how much? 40 rupees. 40. Net price 360. 360. Entry Vaibhavi. Sales return account debit to Vijay. एकदम करेक्ट. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट. एंट्री सेम. सेल्स रिटर्न एक्सपेंस बढ़ा, विजय एसेट घटा. लेकिन अमाउंट कितना होगा तो 360. अमाउंट कितना होने वाला है तो 360. इज दिस क्लियर? 360. दैट्स योर अमाउंट. गॉट दैट? बढ़े आगे. 15th one. विजय सेटल्ड हिज अकाउंट विदाउट अर्निंग द डिस्काउंट. ये कौन है विजय? यही है रिसेंट ट्रांजैक्शन वाला विजय. सेटल्ड हिज अकाउंट विदाउट अर्निंग एनी डिस्काउंट. मतलब उसने अपने को पैसा दे दिया विदाउट एनी डिस्काउंट. मतलब पूरा पैसा मिल गया. मुझे बताओ विजय से कितना पैसा लेना है? 4500. मेरे को 5 अलग अलग अमाउंट आ गए ऑनलाइन ऑफलाइन से सब मिला. एक अमाउंट होना चाहिए. विजय से कितना पैसा लेना है? 300 360 minus 4500. अरे उल्टा 4500 minus 660. कैसे ढूंढते हो? डेटर से कितना पैसा लेना है? डेबिट माइनस क्रेडिट. शॉर्टकट दिया था आपको. विजय अपना डेटर है. विजय अपना डेटर है और डेटर से कितना पैसा लेना है आप कैसे ढूंढते हो? हाउ टू कैलकुलेट दैट? डू सिंपली डेबिट माइनस क्रेडिट. समझ में आ रहा है? डेबिट माइनस क्रेडिट. किसका डेबिट माइनस किसका क्रेडिट? विजय का. विजय जहां जहां डेबिट हुआ है एसेट बढ़ा, जहां जहां क्रेडिट हुआ है एसेट घटा. सिंपल लॉजिक. तो विजय कहाँ का डेबिट हो रहा है? ये देख लो. विजय डेबिट हो रहा है 4500 से. विजय क्रेडिट हो रहा है 300 से. वापस विजय क्रेडिट हो रहा है 360 से. सो 4500 माइनस 300 प्लस 360 मतलब 660. डेबिट माइनस क्रेडिट 4500 माइनस 660 which comes to 3840. ये समझा कि नहीं? बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल. क्योंकि डगले ने पगले. एवरी मंथ यू हैव टू सेटल अ डेटर. एवरी मंथ यू हैव टू सेटल अ क्रेडिटर. तो यू शुड नो फ्रॉम द ट्रांजैक्शन कि भैया इससे कितना पैसा लेना है या इसको कितना पैसा देना है.
अगर आप डेबिट माइनस क्रेडिट याद नहीं रख सकते तो लॉजिकली सोचो, देखो माल बेचा था तभी क्रेडिट पे बेचा था, कितना बेचा था क्रेडिट पे 4000, उसके बाद ये रिटर्न हो गया, कितने का रिटर्न हुआ 300 एंड 360, तो क्या इसका पैसा देगा वो? देना चाहिए, माल दे दिया ना वापस, रिटर्न कर दिया ना, तो इस 300 और 360 का पैसा वो नहीं देगा, तो 4500 माइनस 300 माइनस 360, वो वैसे भी आप सोच सकते हो, जो आपने गुड्स बेचा है इसमें से 300 और 360 का डिफेक्टिव गुड्स निकला रहेगा, वो उसने वापस कर दिया, आपको वो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो कितना मिलेगा 3840, सिंपल, गॉट इट। सो एंट्री क्या बनेगी इसकी? यस, एंट्री, कम ऑन, कैश अकाउंट डेबिट टू Vijay account. Is there any discount? No discount. 3840, 3840. Cash to Vijay 3840. बात समझ आई कि नहीं? बोलो। 3840, 3840. पूरा का पूरा पैसा विजय भैया ने दे दिया, डेबिट माइनस क्रेडिट। घर वालों को समझा हाउ टू कैलकुलेट? डेटर से कितना लेना है, टेस्ट में भी पूछा था, याद है? हिरवे और राव, ओके। सो डेटर को कितना देना है, कैसे ढूंढ, डेटर से कितना लेना है कैसे ढूंढते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट। और क्रेडिटर को कितना देना है कैसे ढूंढोगे? क्रेडिटर को कितना देना है? क्रेडिट माइनस क्रेडिटर जितना बड़ा क्रेडिट में होगा माइनस डेबिट करो, नेट अमाउंट मिल जाएगा आपको, कितना पैसा देना बाकी। घर वाले क्लियर? याद આવે છે? આ બધું કર્યું છે, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, partly cash, partly credit, right? Tell me if you don't understand. Next one, बढ़े आगे। 16th one, purchase goods of 20,000 at 10% TD and 5% CD from Ram, paid 1/4 of the amount. Acha, who will answer this? Meghal. Is it on cash, credit, or partly cash, partly credit? 16th one. Partly cash, partly credit. Partly cash, partly credit, right? So how will you take a start? First of all, First TD. 20,000 pay less TD, how much? 10% TD. That That's is 2,000, which is net. which makes it 18,000. Then 18,000. 1/4 that 1/4 is 4,500. that is 3/4 is cash. 13,500. Ekdam Yeah. correct. Then on cash 5% CD 225, Ekdam correct. which will give 4,375. 4275. Yeah, 4275. Then what? Entry Bolo. purchase account debit Yes. to cash account to Correct. discount received to Ram Ekdam account. correct. Perfect. Purchase to cash to discount received to Ram. बताओ मुझे परचेज में कितना? 18,000. एकदम करेक्ट। आफ्टर टीडी कैश में 4,275. परफेक्ट। डिस्काउंट रिसीव 225. एंड राम 13,500. perfect. This was partly cash, partly credit. If you got this, याद आवे छे? एकदम करेक्ट बोला, परफेक्ट एकदम। देन 17th one, 17th one देखो क्या दिया है 17th one में, पहले यहां तक कर लो, कंप्लीट दिस, 16 तक कर लो, कंप्लीट टिल 16। भाई देख रहा है ना आंसर? चेक करते जाना बराबर। 16th तक हो गया आपका, कंप्लीट टिल 16। હવે 17th वन देखो,
पेड द बैलेंस अमाउंट टू राम एंड अर्न द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। ये राम कहाँ से आ गया? कहाँ था राम? अच्छा यहाँ पर ही था, ये इधर ही था राम। राम बाजू में ही था ऊपर, मैं भी ऊपर ढूंढ रहा, बोला राम किधर आया नहीं है, इधर ही है राम। ये रहा राम। राम को पैसा देना है कि राम से पैसा लेना है? सोच लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेना है कि देना है? हाँ देना है, गुड्स खरीदा है ना, तो पैसा देना है। कितना क्रेडिट पे कितना खरीदा? 13,500 देना है, राइट? हेलो, वही दिया होगा ना हमने। कितना देना है राम को? 13। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट ही है, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो 13,500 पूरा ही देना है। बात समझ आई? अब उधर पढ़ो क्या दिया है। पेड द बैलेंस अमाउंट टू राम एंड अर्न द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। तो क्या डिस्काउंट मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? मिला मिला मिला। अर्न द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। राम बहुत ही अच्छा आदमी, राम बहुत ही अच्छा आदमी है। हमने एक दिन बाद भी पैसा दिया, बोला ठीक है भाई, चिंता वाली बात नहीं, मैं आपको सीडी अलाउ करता हूँ। ओके, अर्न द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। तो कितना सीडी माइनस करोगे? लेस सीडी 5%। ओके, ये सीडी टीडी के टर्म्स बायर सेलर के बीच में डिसाइड किए जाते। बायर और सेलर दोनों को मंजूर है तो पहले सीडी ना भी डिसाइडेड हो, बाद में भी मिल सकती। बात समझ आई? तो बायर एंड सेलर मिलके अगर दोनों को चलेगा, बायर ने रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा टाइम से पहले दे रहा हूँ, सीडी दे दे, सेलर को भी चलेगा तो दे सकता है। ठीक है, ऐसा कोई एकदम रूल नहीं है कि पहले नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकता है। तो 5% करो, कितना होता है? 675 नेट, एकदम करेक्ट, 12825। Okay, what should be the journal entry for this? We are paying, right? Hello, entry Ram account debit to what? Cash. That's it. हाँ, इसको मत खाया जा रहा। CD है ना? How much in Ram? 13,500. 12825 and discount is 675। समझ रहा है घर वाले? डिस्काउंट मिला तो काटा। व्हाट इफ उधर दिया होता पेड टू राम विदाउट एनी डिस्काउंट, तो पूरा कितना देने का? तो फिर एंट्री क्या होती? राम टू कैश 13,500, बराबर है? तो फिर एंट्री होती राम टू कैश 13,500, पूरा का पूरा दे दे। बराबर है, एकदम करेक्ट है। ओके, चलो यहाँ तक 18 तक 17 तक कर लो। સર અગર ઓલામાં આખામાં હમણાં જો આપણે રામના બારેમાં સોચતા કે નથી તો એવી રીતે અગર ન દીધો હોય તો શું કરો? हाँ ना, तो राम टू कैश पूરું 13,500 ન દીધો હોય તો એ બોલે हाँ અહીંયા ને વિધાઉટ એની ડિસ્કાઉન્ટ। અગર નામ જ ન દીધો હોય ઉપર કે ના ના, તો નામ હોય તો પછી અમાઉન્ટ ક્યાંથી મળશે? અમાઉન્ટ આપવું જોઈએ, નામ ન હોય તો અમાઉન્ટ આપવું, बराबर? खाली इधर नाम दिया था ना, तो अमाउंट हमने ऊपर से ढूंढा, ऊपर होगा तभी तो नीचे देगा पेड टू राम, सही तो होना चाहिए, बराबर है? देन नेक्स्ट वन, 18th one, purchase goods of 10,000 and 10% TD, sold the same to Rajesh at 5% TD on list price. What is list price? MRP, ग्रॉस प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग, ऑल आर सेम, राइट? यहाँ पे हमने परचेज भी किया है और क्या दोनों को मर्ज कर दूं? परचेज टू सेल कभी नहीं करना, नेवर मर्ज एक्सपेंस एंड इनकम, ऑपोजिट ट्रांजैक्शन कभी मर्ज नहीं होगा। परचेज अलग रखना है, सेल्स। लेकिन जब आप सेम माल खरीदते और बेचते हो, सेम गुड्स बाय और सेल करते हो, तब ग्रॉस प्राइस रिमेन्स सेम, ग्रॉस प्राइस शुड रिमेन सेम। तो यहां पर आपने क्या प्राइस पे खरीदा है? 9, 10,
हाँ हाँ ठीक है, पहले टीडी वाला बोलो। ग्रॉस प्राइस कितना था आपका? ग्रॉस प्राइस था आपका 10,000, बराबर है। अच्छा, हाउ आर वी परचेजिंग, कैश और क्रेडिट? There's no information given on पार्टी का नाम ही नहीं है तो कैश, राइट, बट टीडी तो लेना ही है। तो 10,000 पे लेस टीडी 10% कितना होता है? 1000, नेट 9। बताओ मुझे इसकी एंट्री। परचेज टू कैश, नो सीडी इन्वॉल्व। तो परचेज टू कैश, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा, हाउ मच? 9,000. परचेज टू कैश इट्स 9, सॉर्टेड। परचेज टू कैश इट्स 9,000। घर वालों को समझा यहाँ तक? ये फर्स्ट हाफ हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। फर्स्ट हाफ इज परचेज टू कैश 9, राइट? सेम गुड्स were sold, same goods, sold the above goods, sold the same goods to Rajesh at 5% TD on list price. जो बताओ, अभी सेम गुड्स बेच रहे हो तो टीडी किस पे लोगे? 10 पे कि 9 पे? 10,000. Why not on 9? list price और loss भी होता है। वो लोग ने लिस्ट प्राइस ना भी दिया तो भी किस पे लेना? 10। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका? लॉस। याद है, बताया था क्यों लॉस होगा, समझ में आ रहा है? आपने खरीदा कितने में? 9 में, और आप 9 पर ही डिस्काउंट देके बेच रहे, तो कुछ मिलेगा हाथ में? पप्पा ની दुकान बंद. ओके, ये नहीं करा हुआ है, पप्पा એટલા મહેનતથી સેટઅપ કરી છે. So 10 minus 1 9, that is our purchase price. बिल कितने का बना? 9,000 का, खरीदा हमने 9 में, ठीक है? अब हम तो शाणे हैं, हम तो बिजनेसमैन है, हम पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगाएंगे, फिर टीडी माइनस। तो प्रॉफिट लगाया हुआ प्राइस इज 10, ये आपको दिया हुआ है। आपको ऐसा नहीं बोला कि इतना प्रॉफिट लगाओ, आपको दे दिया कि भाई आप एमआरपी पे बेच रहे हो। एमआरपी पे, एमआरपी कितनी होनी चाहिए आपकी? 10। तो 10 पर ही टीडी अलाउ करना है। 10 इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, ये बात समझ में आई? 10,000 इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपने खरीदा कितने में? 9 में, और आप कितने में बेचने वाले हो? 10 में। So whenever you buy and sell the same lot, your GP remains same. Same lot खरीदते और बेचते हो तो gross price should remain same. अब टीडी अलाउ करो, अब इसमें प्रॉफिट पड़ा हुआ, अभी टेंशन वाली बात नहीं। अभी कितना टीडी अलाउ किया हमने? 5%। तो 5% माइनस करो यहाँ से, कितना होता है? 9,500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 500 का प्रॉफिट हुआ है, राइट? बट विल यू रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट और लॉस? व्हाई? एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैलकुलेट ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ द ईयर. इज दैट क्लियर? नाउ थिंक एंड टेल मी, एंट्री, आर वी सेलिंग ऑन कैश और क्रेडिट? Rajesh to sales. क्रेडिट पे। पार्टी का नाम दिया है कैश के बारे में, सो राजेश अकाउंट डेबिट टू sales account 9,500. Rajesh to sales 9,500. Will you record profit or loss separately? Why? Goods है, एसेट पे करते हो, गुड्स पे कभी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, ईयर एंड पे करते हो। और कितने का प्रॉफिट हुआ? समझा कैसे? 500। बड़े शान है, खरीदते वक्त कितना डिस्काउंट मिला था, और बेचते वक्त 10%। बेचते वक्त वही गुड्स पे कितना दिया? क्या 10 से ज्यादा देना चाहिए था कि 10 से कम देना चाहिए था? 10 से कम दोगे तो ही फायदा होगा, 10 से ज्यादा दोगे तो पीछे पप्पा ने दुकान। खरीदते वक्त 10% है और बेचते वक्त 10 से ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, तो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओ। समझ में आ रहा है? खरीदते वक्त 10% है तो बेचते वक्त 10% से कम डिस्काउंट देना पड़ेगा। बात समझ आई? यस। In the coming terms आगे जाके will we get GST also, like इस पे अगर 9,000 पे तो 18% और फिर उसमें 9,000? हाँ, अभी तो किया ना हमने 2 एग्जांपल पहले। कैसे समझ? हाँ, ऐसा भी है। सेम लॉट। हाँ, सेम लॉट सब करो। तो फिर वहाँ पे ITC और अरे तो GST पेएबल भी कैलकुलेट करना। हाँ हाँ, दोनों पे। और फिर DD/CD भी आएगा हाँ उसमें? हाँ तो कितना? हाँ, प्रॉफिट भी आएगा बहुत बड़ा, वो NM लेवल, that is NM level. I'll take those sums. That will include profit, same lot, TD, CD, GST, partly cash, partly credit, everything.
वो NM में आ सकता है, एक आध एंट्री आ सकता है, કેટલા marks? 2 मार्क, 2 से 2.5. અને સોમવારમાં હવે તો મેં એમાં પૂછે જ પૂછે ને, બસ. બસ બસ નહીં, શીખવાનું. આપણે પ્રેક્ટિકલ ધંધો કરવાનું છે તો શીખવાનું. ચલો, લર્નિંગ ઇઝ નેવર વેસ્ટેડ. ચલો, 19th वन देखो क्या दिया, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 एट 20% TD 5% CD फ्रॉम आनंद. मुझे बताओ, अच्छा उसके बाद दिया है सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू राजा. पहले परचेज कैसे हो रहा है, कैश और क्रेडिट? परचेज कैसे हो रहा है, क्रेडिट. पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ, सेल्स पर क्रेडिट, बराबर है. मुझे बताओ परचेज में कौन सा डिस्काउंट लोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस, 10,000. 10,000 पे कितना परसेंट, 20%. 20%. 20% that's 2,000. So net 8. Will you 8,000. take CD? Why? It's on credit. It's on credit, तो CD नहीं लेने का, इधर ही रुक जाना. बताओ मुझे क्या एंट्री करोगे, आपने आनंद से खरीदा, परचेज टू आनंद. ये तो अभी एकदम लॉलीपॉप एंट्री है, परचेज टू आनंद. ओके, नींद में भी उठ के पूछा तो एक्सपेंस बढ़ा और क्रेडिटर लायबिलिटी बढ़ा, 1000 बार कर दिया है. परचेज टू आनंद, एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ी, कितना, 8,000. आनंद भैया कौन है हमारे, क्रेडिटर. उनको पैसा देना है कि लेना है, देना है. कितना देना है, 8,000 देना है. अब कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आधा ही हुआ है. इसके बाद सेम गुड्स आपने सेल किया है. क्या किया है, सेम गुड्स बेचा है. सेम गुड्स बेचा है, कैसे बेचा है, क्रेडिट पे. दिख रहा है वहां पे, पार्टी का नाम है, कौन है वो, राजा भैया. राजा भैया को बेचा है, राजा भैया का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं, बराबर है. तो कौन सा डिस्काउंट लेना है, टीडी लेना है. तो किस पे लोगे टीडी, ग्रॉस प्राइस. और ग्रॉस प्राइस, सेम लॉट बेचते हो तो ग्रॉस प्राइस शुड रिमेन सेम. 10 पे लोगे कि 5 पे लोगे, 5 पे लोगे. क्यों, हाफ पे, बराबर है. तो पूरे पे मत लेना, हाफ ऑफ ग्रॉस विच इज 5. 5,000 पे लेस टीडी कितना लोगे, 10%. सेल्स के वक्त टीडी है 10%, कितना होता है 500. नेट अमाउंट 4,500. एंट्री क्या बनेगी, राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. घर वालों को समझाइए. हेलो, राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. घर वाले क्लियर, दर्शी क्लियर, जीत मेहता, भौमिक, हर्ष पाटिल, Yes, sir. getting it? Raja to sales how much? Yes, sir. 4,500. Once again, did we sell all the goods or half? Half of what? 10,000. उस पे ही टीडी लेना. Will you take half of 8 and उस पे टीडी? क्या होगा अगर half of 8 और उस पे टीडी करोगे, पप्पानी दुकान बंद, लॉस थतु रहते. क्यारे प्रॉफिट थसे, दिमाग चलाने का, बिजनेस करना है, प्रॉफिट होना जरूरी है. ठीक है. प्रॉफिट कब होता है, when you buy cheap sell expensive, when you buy expensive sell cheap. हरिद्वार, ऋषिकेश. ओके, भजन कीर्तन. चलो नेक्स्ट वन, 20th क्या हो रहा है देखो. सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन कौन होता है मालूम है, जो सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेचता है और फिर भी प्रॉफिट कमाता है. One who can purchase from a Marwadi and sell it to a Sindhi and still make profit. मारवाड़ी तुमको कभी भी भाव कम करेगा नहीं, एकदम जो भाव है वो भाव पे देगा, और सिंधी तुमको निचोड़ लेगा और सस्ता सस्ता सस्ता. It's a general fact because it is the market.
Yeah, Marwadis and all, they do very competitive business. I'm not वो मेरे को बोला है ये सर ये रेसिज्म करता है ये करता है वो करता है. This is a general fact of business community. Jains, Marwadis, Sindhis and Gujaratis. Very shrewd businessman. Very shrewd. भाव ताल पैसा टकाना मामला में बहुत shrewd. Okay. ऐसा जनरली दूसरा कम्युनिटीज में कम देखा गया. अभी महाराष्ट्रन भैया को तुम बोलोगे कि ये भाव है ये भाव, ज्यादा भाव तोल करेगा नहीं, डिस्काउंट. गुजराती को ए चल आधा भाव होना चाहिए, इतना नहीं होएगा, डिस्काउंट करवा करवा के निचोड़ ले ऐसा. तो एकदम स्मार्ट बिजनेसमैन इज द वन हु कैन बाय फ्रॉम अ मारवाड़ी, सेल टू अस इंडिया एंड स्टिल मेक प्रॉफिट. दैट्स कहावत. चलो, so next one, come to sum number 20. 20 is a continuation of 19. 20 is a continuation of 19. I think Raja returned half of the goods taken by him and the same were returned back to Anand. Raja returned half the goods returned by him and the same were returned back to Anand. पहला मुझे बताओ दो एंट्रीज हो रही है कि एक सेल्स रिटर्न भी हो रहा है और एक क्या, दोनों को घुसा दूं मर्ज कर दूं? अलग अलग, एक एक्सपेंस है एक इनकम. ठीक है, एक एक्सपेंस है एक इनकम. नाउ कम टू, हाँ पहले राजा का आधा गुड्स रिटर्न हुआ, तो राजा को कितना बेचा था? ये 5,000 लो क्या 4,500? 5 की 4,500? Why not 5? ग्रॉस है. सेल्स कौन से भाव पे रिकॉर्ड हुआ है? नेट. तो सेल्स रिटर्न भी कौन से प्राइस पे होना चाहिए? नेट. बराबर है. तो 4,500 का क्या करोगे? हाफ. 4,500 का हाफ कितना होता है? 2250. 2250 बराबर है. 2250. मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राजा अकाउंट. और अमाउंट क्या होगा आपका? 4,500 का हाफ. दैट इज हाउ मच? 2250. ये बात समझ आई? घर वालों को समझा? why I did not take 5? Why I did not take 5? 5,000 का हाफ क्यों नहीं किया? नहीं ग्रॉस प्राइस. हाँ ग्रॉस ओनली यू सेड ना. 5,000 is gross. I cannot record the entry at gross, right? I have to record it at which price? Net. What is the net price? 4,000. उसका half, that is 2,250. What if you took 5,000 का half? चलो 2,500. तो क्या करना है उसको? तो क्या करते हैं आप? ग्रॉस से नेट आने के लिए टीडी माइनस कर देते. कितना टीडी था? 10%. करके देखो 2,500 पे 10% 250 आएगा ना? 2,250. ऐसे भी कर सकते हो. बात समझ आई? दोनों में आंसर सेम ही आएगा. अगर बाय चांस आपने ग्रॉस का हाफ कर भी लिया तो टेंशन वाली बात मत टेंशन नहीं लेना है. 5,000 का हाफ कर भी लिया तो कितना होता है? 2,500. लेकिन वो तो ग्रॉस है. जब भी ग्रॉस दिया होता है आप क्या करते हो? टीडी माइनस. किसका टीडी? राजा का टीडी. सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी. तो कितना होता है ये? 10% ऑफ 2,500, 250. Net amount would be 2,250. We'll get the same answer. Is this clear? ये तो था फर्स्ट हाफ. सेम गुड्स हमने भी रिटर्न किए हैं. देखो किसको? आनंद भैया को हमने रिटर्न किए हैं सेम गुड्स. तो एंट्री पहले बताओ मुझे, एंट्री क्या बने? आनंद भैया डेबिट टू परचेज रिटर्न. क्यों आनंद डेबिट? क्योंकि भैया कौन थे? आनंद was आनंद क्रेडिटर. क्रेडिटर घटा तो डेबिट. एंड परचेज रिटर्न was इनकम. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. राइट? Amount is very important now. What amount you will write in Anand to purchase? 2,000. How much? 2250.
2250 नहीं लिख सकते बॉस। नहीं बट 1/4 ऑफ इसका गुड्स है ना, जो पहले खरीदा था उसका 1/4 हुआ कि हाफ गुड्स उसने बेचा और उसका हाफ वापस रिटर्न। हाँ नहीं समझा। देखो हमने हमने खरीदा क्या प्राइस पे था? 8000 दिख रहा है? 8000 का खरीदा था, उसमें से पूरा बेचा था कि हाफ? हाफ बेचा था और उसका भी हाफ रिटर्न हुआ, तो पूरे का कितना होता है? हाफ का हाफ इज, तो टोटल का कितना हुआ? 8000 का कितना हुआ? 1/4 हुआ। व्हाई आई कैन नॉट राइट 2250 फर्स्ट ऑफ ऑल? बिकॉज 2250 इज द सेलिंग प्राइस। 2250 इज द, देखो आपने 5000, ये 8000 का गुड्स था, ठीक है, इसका आधा कितना होता है? 4 वाज द कॉस्ट, 4 वाज द कॉस्ट, लेकिन आपने बेचा था 4500, प्रॉफिट लगा के बेचा था ना 500 रुपया, तो रिटर्न के वक्त 2250 किया तो इसके अंदर भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है 250 का। सेल्स आर विथ प्रॉफिट, so sales returns are also with profit. Sales and sales return happen at same price, selling price, but purchase and purchase return happen at cost price. Suppose कल उठ के आपने सबके सब गुड्स रिटर्न कर दिए, आनंद को आपने सबका सब गुड्स रिटर्न कर दिया सब, तो कितना लिखते हैं? 8। आधा रिटर्न करते तो 4, 1/4 रिटर्न करते तो वही तो हो रहा है, 1/4 तो रिटर्न हो रहा है। समझो आपने 100 रुपए का माल खरीदा, उसमें से 50 का बेचा, 50 का आधा कितना होता है? 25। तो आपने वही किया है, 8 का खरीदा है, उसका हाफ आपने सेल किया है प्रॉफिट लगा के, उसका हाफ रिटर्न हुआ है, तो टोटल का कितना होता है? 1/4 होता है। टोटल का कितना होता है? अगर ये गणित दिमाग में नहीं बैठ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो एक दूसरा भी मेथड है इसका। मुझे बताओ आनंद ने कितना गुड्स रिटर्न किया? राजा ने कितने का गुड्स रिटर्न किया? कितना गुड्स रिटर्न किया? हाफ, बराबर है? कितना रिटर्न किया? हाफ रिटर्न किया। राजा को कितने का सेल किया था? उसका ग्रॉस प्राइस देख लो। व्हाट वाज द ग्रॉस प्राइस? 5। कौन सा प्राइस ले रहा हूं मैं? ग्रॉस वाज 5। 5 का हाफ, 5 का हाफ 2500. If I take gross was 5000. 5 ka half is 2000, but 2500 is gross, right? उस पे I will have to subtract TD. कितना TD? सेल्स रिटर्न्स के वक्त कितना TD? सेल्स रिटर्न्स के 10% TD, तो कितना होता है ये? 2250। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 2250, राइट? बराबर है? अब यही लॉट हमने आनंद को रिटर्न किया, सेम लॉट जो आया राजा से, सेम लॉट हमने आनंद को रिटर्न कर दिया, तो ग्रॉस प्राइस शुड रिमेन सेम। जैसे सेम लॉट परचेज और सेल करते हो तो ग्रॉस प्राइस शुड रिमेन सेम। अभी अभी किया हमने, ग्रॉस प्राइस सेम लेके, दिख रहा है ये 10 और ये 10। सेम लॉट जब खरीदते और बेचते हो तब ग्रॉस प्राइस इज सेम ना? हेलो, when you buy and sell the same lot, your GP remains. So when you return the same lot, that time also your GP should remain. So what was the GP at the time of sales return? 2000. Same GP you can take at the time of purchase return, 2000. लेकिन अब कौन सा TD माइनस? How much TD will subtract now at the time of purchase return? 10% or 20%? 20%। क्यों? क्योंकि परचेज के वक्त कितना TD था? तो परचेज रिटर्न्स के वक्त भी 20%। सेम लॉट। सेल्स रिटर्न्स के वक्त कितना माइनस किया TD? वाई? बिकॉज सेल्स के वक्त कितना था? 10। जो TD सेल्स के वक्त था वो सेल्स रिटर्न्स के वक्त माइनस करो। जो TD परचेज के वक्त था, ये रहा, वो परचेज रिटर्न्स के वक्त माइनस करो। Got it? So instead of taking that 1/4, what you can do is take the gross price. Take the gross price ले लो, gross price सेम ही है 2500, इधर भी 2500, परचेज सेम लॉट रिटर्न कर रहे हो, खाली TD सेल्स रिटर्न्स के वक्त कितना माइनस करना है? 10%। परचेज रिटर्न्स के वक्त कितना? 20%।
सेल्स रिटर्न्स के वक्त 10, क्योंकि बेचते वक्त 10% था तो सेल्स रिटर्न्स के वक्त भी 10, खरीदते वक्त कितना था 20, तो परचेज रिटर्न्स के वक्त भी 20. व्हाट दैट? तो 2500 लेस टीडी 20% कितना होता है 500. आपको आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 2000. इज दिस क्लियर? समझा? दोनों मेथड क्लियर? पहला वाला 1/4 ले सकते हो, सीधा 8000 का 1/4 ले लो. नेट अमाउंट जो है ना 8000, जस्ट टेक 1/4 ऑफ दैट, क्योंकि हाफ का हाफ रिटर्न हुआ है. 8000 का 1/4 होता है 2000. गॉट इट? दूसरा वाला मेथड है टीडी. टीडी के लिए कौन सा प्राइस लेने का आपको? ग्रॉस. समझा? सेल्स रिटर्न्स के वक्त कौन सा टीडी? सेल्स का. परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का. 20% तो आ गया 2000. एक और मेथड है, तीसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हो. मुझे बताओ, आपने ये गुड्स कितने में सेल किए थे राजा को? इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? नहीं, क्रॉस नहीं, कॉस्ट. 8 के खरीदे थे, 8 में पूरे बेचे कि आधे? 8 का आधा 4. तो आपका कॉस्ट होता है 4 और आपने बेचा कितने में? 4.5. बराबर है? उसमें से ये भैया ने कितना रिटर्न किया? आधा कितना होता है? 2250 क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर 4 का गुड्स का सेलिंग प्राइस है 4500, तो 2250 का कॉस्ट प्राइस कितना होएगा? 2000. अल्टीमेट लॉजिक क्या है? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस, परचेज एंड परचेज रिटर्न हैपन एट कॉस्ट प्राइस. सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस, परचेज रिटर्न हैपन एट. तुमने 1000 में खरीदा और 1500 में बेचा, भाई ने रिटर्न किया सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सबका सब रिटर्न हो गया. तो सेल्स रिटर्न में कितना लिखोगे? 1500. और परचेज रिटर्न में कितना लिखोगे? 1000, जो भाव पे खरीदा था. समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपने खरीदा था 4 में, बेचा 4500 में, उसका आधा उसने रिटर्न किया. वही माल हमने रिटर्न किया, लेकिन भाव कितना लगाओगे अभी? 2000, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं. दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट. समझ आया? एनीवे यू कैन कैलकुलेट. लॉजिक से करना खाली. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस, परचेज एंड परचेज रिटर्न एट कॉस्ट प्राइस. एंट्री में अमाउंट लिख दो. कितना आएगा अमाउंट? व्हाट विल बी द अमाउंट? 2000. घर वालों को समझा? एनी वन ऑफ द 3 मेथड यू कैन अप्लाई. ओके, ग्रॉस लेके टीडी माइनस करो, डायरेक्टली 1/4 करो, या फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है? See the next one. I want you to try 20 and 21 on your own. Come on. 20 और 21 खुद से ट्राई. एक मिनट, कौन सा किया? 20 किया, सॉरी. 21 और 22 ट्राई करो. 21 and 22 ट्राई करो. Come on. 21 and 22. Come on, try. All of you try 21 and 22. This मतलब gross.
तो बताता हूँ. हो गया. सेल्स रिटर्न्स में क्या प्राइस आएगा? सर इसका हाफ, राइट? 4750 का हाफ, 4750 का हाफ, क्योंकि 4750 में आपने बेचा था उसका हाफ 2375. एंड परचेज रिटर्न में क्या आएगा? बोलो. A2 परचेज रिटर्न में कितना है? क्यों 2250? 4500 का हाफ. इधर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 4500 का हाफ. वाई 4500 का हाफ है 2? हाफ वे रिटर्न. पूरा का पूरा बेच दिया था, आधा उसने रिटर्न किया, वही आधा हमने रिटर्न किया. तो जब आधा उसने रिटर्न किया, सेलिंग प्राइस का हाफ लिया, और हमने रिटर्न किया तभी कॉस्ट प्राइस का हाफ लिया. बात समझ आई? एक और तरीका था, अगर आप ग्रॉस से करते तो व्हाट वाज द ग्रॉस प्राइस? इसका 5000 का हाफ कितना होता है? 2500 इज ग्रॉस. तो सेल्स रिटर्न्स के वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? टीडी माइनस. कौन सा टीडी लेते सेल्स रिटर्न्स के वक्त? 5. तो 2375 आ जाएगा. और परचेज रिटर्न के वक्त वही ग्रॉस रखना है. परचेज रिटर्न के वक्त सेम ग्रॉस प्राइस रखो 2500, लेकिन टीडी कौन सा माइनस करो? 2250. आ गया? समझा? ये ग्रॉस के तरीके से करोगे तो 2500 इज ग्रॉस लेस 5%, दैट इज 125, नेट इज 237. और परचेज रिटर्न के वक्त ग्रॉस वही लेना 2500, लेकिन टीडी 10%, 225. समझ में आया? ये ग्रॉस लेके करोगे तो खाली टीडी याद रखना. मेरे को बोलो, सेल्स रिटर्न्स के वक्त कौन सा टीडी? सेल्स का टीडी. और परचेज रिटर्न्स के वक्त गेट द सेम. ट्राई द नेक्स्ट टू, 23 and 24. कम ऑन, 23 and 24 ट्राई करो, सिमिलर टू दिस. ABC ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एंट्री में वो बी और फॉर्म का नाम रहेगा क्या जैसे? नहीं, नाम भी रहते हैं, ए बी भी आ सकते हैं, एक्स वाई भी आ सकते हैं. कभी कभी आएगा बीच में ए बी एक्स वाई. करो पी क्यू. 23 and 24. Come on, try. Try 23 and 24. हो गया? किधर भाग रहे हो?
सर इसमें सीडी नहीं आएगा ना? नहीं आएगा क्योंकि इट इज ऑन क्रेडिट। आज पूरा खत्म कर रहा है ओवर टाइम। अब मुझे बताओ, ये तो आ गया होगा आपको 23rd परचेज टू पी एंड क्यू टू सेल्स। मुझे बताओ क्यू रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, तो कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न्स टू क्यू, सेल्स रिटर्न्स टू क्यू हाउ मच? 1425 किसका हाफ लेने का? 2850 का हाफ सेल्स रिटर्न। इसको बेचा था 2850, तो उसका हाफ कर लो। 2850 का हाफ दैट इज 1425, बराबर है। 1425 में सेल्स रिटर्न, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हेलो, अभी वही गुड्स हमने रिटर्न किया, तो पी टू परचेज रिटर्न, पी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन अमाउंट क्या होगा? 1350 क्यों 1350 भैया? 1/4 1/4 of 5,004. That's a shortcut. 1/4 of 5,000, या फिर दूसरा मेथड आप क्या करो, ग्रॉस ले लो। 3000 का ग्रॉस था ना, उसको सेल करते हो, उसका आधा कितना होता है? 1500, राइट? कितना आधा होता है? 1500। तो अगर 1500 ग्रॉस लेते हैं तो आप कितना डीडी माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न्स के वक्त? हाउ मच? सेल्स रिटर्न्स के वक्त कितना डीडी लेते हैं? 5%, 75, so 1425। और परचेज रिटर्न्स के वक्त कितना लेते हैं आप? 10%, लेस टीडी 10% कितना होता है? 150, नेट अमाउंट 135। या फिर दूसरा तरीका आपने बोला मुझे क्या, 5400 का 1/4, तो भी यही आएगा 135। वाई 5400 का 1/4? आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आधा रिटर्न हुआ, 1/4 रिटर्न हुआ, 135। योर अल्टीमेट अमाउंट इज 1350। बात समझ आई? कंसेप्ट क्या है? परचेज एंड परचेज रिटर्न हैपन एट विच प्राइस? कॉस्ट। एंड सेल्स रिटर्न एट सेलिंग। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ये सी है, ये सी है, ये एस है, ये एस, सेलिंग प्राइस। ओके, नेक्स्ट वन 25। 25 देखो सब लोग ध्यान से एकदम। 25 क्या दिया है? 25, 26, 27, 28, 29 very important transactions, very important, very the most important. Purchase goods from Bhavesh at 10% TD, 2% CD, paid 4410, paid 4410. Tell me, is that 4410 before CD या after CD? After CD है। कैसे पता चला? पेड दिया है, पेड। पेड एंड रिसीव्ड अमाउंट इज बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट। 4410 इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो आपको क्या ढूंढना है वहां से? बिफोर डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा ना? ढूंढना है कि नहीं ढूंढना? ढूंढना है ना? क्यों ढूंढना है? सीडी बुक्स में रिकॉर्ड होता है ना, सीडी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? बिफोर डिस्काउंट पता चलेगा, तभी तो सीडी पता चलेगा। अभी कैसे ढूंढना है बिफोर डिस्काउंट? याद है हमने एक सम में किया था, जो मैंने आपको घर पे करने को दिया था? 40 seconds का। इसका एक शॉर्टकट है, हाँ 40 सेकेंड इसका शॉर्टकट था। एक एक्स वाला है फुल प्रूफ, और एक शॉर्टकट ट्रायल एंड एरर। नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन दी हायर साइड। व्हाट इज द नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन दी हायर साइड? 4500। डाल के देखो आ रहा है क्या आंसर?
आएगा आवश्यक है 90 आ रहा है? 0 आएगा टीडी एंड फिर 90 रुपए निकाला तो 441 एग्जैक्टली देखो कुछ तो ग्रॉस था, उस पे 10% टीडी मालूम नहीं, नेट मालूम नहीं, सीडी 2% मालूम नहीं, फाइनल अमाउंट 4410। अभी कैसे ढूंढोगे ये? 4410 इज व्हाट? आफ्टर सीडी। अपने को ढूंढना है, एक तरीका है शॉर्टकट, नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड। व्हाट इज द नियरेस्ट राउंड फिगर? डाल के देखो आ रहा है क्या? 2%। आ गया, आ गया 4500 का 2% 90, 4410 एडजस्ट हो गया ना अमाउंट, राइट है मतलब। गॉट इट? या तो फिर इक्वेशन बनाओ, ये नहीं जमता है तो इक्वेशन बनाओ। व्हाट इज द इक्वेशन? अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर सीडी। समझा क्या लिखा मैंने? अमाउंट बिफोर सीडी ये रहा 4500, ये मालूम नहीं है अपने को, ये ढूंढना है। अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीडी? 2। इधर 2% लिखो। किसका 2%? बिफोर का। तो बिफोर को 100 ले लो, 100 रुपीज। लेट बिफोर बी 100, तो 100 माइनस 2 विल गिव यू 98। मतलब क्या कि अगर बिफोर सीडी 100 रुपया होता तो आफ्टर सीडी 98 होगी, बराबर है? बिफोर सीडी अगर 100 रुपया तो आफ्टर सीडी, ये आफ्टर सीडी अपने को मालूम है कितना है? 4410 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा ये? 4410 इंटू 100 अपॉन 98, ये भी आएगा 4005। ये आपका इक्वेशन वाला मेथड है। इक्वेशन वाला मेथड से हर बार फुल प्रूफ आंसर आएगा। एक्स मेथड से भी कर सकते हो। ओके, ये एक्स, ये 2%, तो ये 98। नो नीड, दीज आर ऑल रफ वर्क, पीछे जाएगा। इज दिस क्लियर? गॉट इट? सो व्हाट इज योर बिफोर सीडी अमाउंट? 4500, ये 90, ये 4410। बिफोर टीडी ढूंढना है, ये दोनों ढूंढना है? ढूंढना है? क्यों? ये कहीं रिकॉर्ड होते नहीं है, बराबर है ना? क्या होगी एंट्री बताओ अभी सोच के। परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश एट सो एंड सो टीडी एंड सीडी, क्या एंट्री करोगे? इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? हेलो, पेड, पेड पैसा आप ही दीजा तो कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बोलो। परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, कितना आएगा परचेज? हाँ, ये रिवर्स हिंट है, वो खाली रिवर्स इज अ हिंट। रिवर्स इज अ हिंट कि भैया उल्टा कैलकुलेशन कर, वो रिवर्स देंगे नहीं देंगे आपको पता ही होना चाहिए कि रिवर्स है, पेड है ना, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना आएगा परचेज में? कैश डिस्काउंट। ट्राई करो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। 26 सब लोग, 26 ऑल ऑफ यू ट्राई, कम ऑन। क्या आएगा? 26 वाले में भी ऐसा ही है। 26 वाले में भी ग्रॉस इज मिसिंग, टीडी इज 10%, नेट भी नहीं पता, सीडी इज आई थिंक सर टीडी 1%। 5% है। अच्छा, टीडी 5 है, टीडी इज 5, सीडी इज 1 and final amount is 9405. How will you crack this? What is your before CD amount? Come on, use your brain.
सोचो। Sir, 9500. 9500 आ रहा है। एक तो नियरेस्ट राउंड फिगर वाला शॉर्टकट है अपना 9500 पे 1% कितना होता है 95 आ गया ना 9405। या फिर इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? अमाउंट बिफोर CD minus CD is amount after CD. What is the percentage of CD? 1. So right below CD 1. किसका 1%? Before वाले. So make this 100. Before वाले को कर लो 100. 100 minus 1 99. तो अगर बिफोर वाला 100 है तो आफ्टर वाला 99। आफ्टर वाला कितना दिया आपको? 9405। तो बिफोर वाला कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9405 into 100 upon 99, that is 9005. Is this clear? Got it? एंट्री क्या होगी? आप बेच रहे हो आई थिंक अभी, क्या होगी एंट्री? कम ऑन, कैश अकाउंट डेबिट, then what? Discount allowed account debit to what? Sales. Cash discount allowed to sales, how much? 9405, 95 and 9005. Is this clear? Got it? Hello? समझ में आया कि नहीं बताइए। Okay, so on that note we stop. Transaction number 27, 28, 29 are for homework. I want you all to try this, use your brains at home. We'll discuss them in the next lecture on Thursday. Okay, कुछ doubts है तो रुको, otherwise you can leave.